Good afternoon, students. We have studied study about the different section of the thoughts and the philosophical thoughts and the ideas which are being exchanged and discussions and debates were very much open in ancient time. Or we have seen that the 6th century BC was the century of transformation and transition. Or we can say that in all walk of the life, whether the political emergence, many states were forming, powerful states were involved in extending their boundaries. Or in the society, I have already mentioned that the Brahmanism and the Vedic religion was dominating in society, and yagyas in yagyas thousands of cattles which were the very much important for the agroeconomy, growing agroeconomy, expanding agroeconomy of the Gangetic Valley was much dominated, and with the use of the iron, large scale jungles were being cut, and this make a way for collecting the taxes by the king. Kings got the uh, collections and maintained the strong army. And now here the many socio-religious movements now went on and launched in the different parts of the world. The thinkers thought about the religion, they expressed their views about the society, and, and now no doubt the society was religion ridden, and many of the beliefs were prevalent. Under these conditions and circumstances where the Brahmanism were dominated in India, yagyas, rituals, all kind of the domination was prevalent, and now man was, and by the Dharma Sutras, the peoples were divided or their conditions, and they had been put at a certain rank according to their birth. It was a very much dominated in the society. The students, under that such circumstances, the two religious thinkers emerged, and they were particularly belong to the Kshatriya, and both were belong to the royals and royal descents, and both left their palaces in quest of finding the truth of the life, and for the welfare of the society. And now, ultimately, after the hard austerity, or after their penance, great penance, they achieved the salvation, they achieved the nirvana, and got the Kevalya Jnana. Buddha got the enlightenment, and the Mahavira got the Kevalya Jnana.
And since he was the winner of chastity, winner and conqueror, after the show penance, he was the conqueror called as the Jin, and in the on that name, the name of the Jin, then this religion called as the Jain. Since he was born in a royal family, he got married, but as the age of the 30, 29, 30, he left his house. His father and he left the father's, mother's, and his family, wives, and a role for the finding the truth of the life. And now, but he, Jaina Mahavira, followed the track of the way passage of the austerity and the great penance. 12 years जैसे ही निकले थे और द 12 years इन्होंने कोई स्काई क्लैड एक वो कोई कपड़ा ही नहीं पहना आफ्टर दैट and that those clothes robe now torn scattered and he became the sky clad and continued his meditations austerity and the penance and after that he got the Kevala Jnana and come forth the come for the service of the community. हालांकि since the जैन धर्म जैन रिलीजन बहुत पॉपुलर नहीं हुआ जितना एज द बुद्धिज्म हुआ उतना जैनिज्म नहीं हुआ ये पर्टिकुलरली अभी भी गुजरात और राजस्थान उस इलाके में सेंटर्ड है लेकिन ये जो रिलीजन इन्होंने ऑस्ट्रेट तो इसका रीजन एक है कि इसमें बहुत हार्ड पिनेंस है और ऑस्टेरिटी इनका वे ऑफ द साल्वेशन या वे ऑफ द निर्वाणा का जो है वो वो चीजें जो उसका वे है इट इज द वेरी डिफिकल्ट और एवरी वन कांट बी ऑब्जर्व द ऑस्टेरिटी एंड penance or meditation so that's why this because of its very complicated way so the only very few people are the follower of this now a proportion of our population of the country and now uh, Mahavira then after he came forward and at the age of 72 he died at Pavapuri and up to the Karnataka, this religion is very dominated there. Many structures, this religion, structures are constructed associated with the religion और फेसिक द वे अगर हम फिलोसफी देखें तो नाउ बिफोर हिज बर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम और दूसरी बात एक और बात बता दें इनके टीचिंग्स के पहले कि when this religion divided in basically the two sects. It is said that he once in Magadh for 12 years drought occurred, famine occurred there. So a group of Jains under the leadership of the Bhadrapa, they headed towards the Karnataka. They now rolled there and after 12 years they back to the Magadh. But they saw and found those who were stationed at Magadh were in the white clad. So on this point, a very hot discussion happened,
A discussion happened, and after that, both could not be come to the compromise. So on that occasion, this religion divided into the two parts. Jainism divided. The one divided first one the Shvetambara and other the Digambara. The Shvetambara who now put on the white clad and robe on their body. Digambara wear the sky clad. No any clothes on their body. So this religion divided Shvetambara and Digambara. And then we see that before the birth of the Mahavira, almost 23 Tirthankar, those who guide the men and the women across the river of existence, उसे तीर्थंकर कहते हैं. 23 तीर्थंकर were in the order of this religion before the birth of the Mahavira. First Rishabh and 23rd Parshvanath, and particularly he belonged to city, and his peat is there beside the BHO, and you can get there and find know a lot about that. So now this is the uh, beginning. Before him or 6th century BC में according to Jain tradition महावीर preceded 20 मैंने कहा वो preceded 23 तीर्थंकर and the teachers. Now the most important ideas of Jainism is the entire world is animate. वो मानते हैं कि जीव लाइफ हर एवरी वर्ल्ड में जीव एवरी वर्ल्ड इन एवरीथिंग देयर इज जीवा. हर चीज में चाहे वो एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, एनिमेट हो या इनएनिमेट, सब में जीव है. नाउ एवरीथिंग एनिमेटेड, वर्ल्ड इज एनिमेटेड, लाइफ है इस दुनिया में, एवरीथिंग में लाइफ. एंड इवन वो मानते हैं कि स्टोन्स में भी लाइफ है. इवन द स्टोन्स हम सोचते हैं कि इनएनिमेट है, नो, वो मानते हैं कि लाइफ इज देयर. रॉक्स, वाटर हैव द लाइफ. वाटर तो हम मान सकते हैं कि वाटर एक, लेकिन रॉक्स को भी वो लाइफ मानते हैं, स्टोन्स को भी. एंड water, none injury to the living beings. That's why they emphasize that everything is living being around you. So they emphasize that none injury, don't hurt anything. यहाँ तो कुछ तो ऐसा भी मानते हैं कि अगर हम बहुत रुखा या बहुत हार्श से अगर इफ यू स्पीक हार्श एंड दिस हर्ट्स टू द अदर, तो ये भी हिंसा है. दैट इज द वॉयलेंस. उनका मानना है कि whatever we speak and this hurts to the other, it is the violence. कुछ मतलब उसमें थिंकर्स हैं जैनिज्म में, उसको भी वो वॉयलेंस मानते हैं. तो नाउ दिस इज द जैन लिविंग बीइंग स्पेशली टू द ह्यूमन्स. कहते हैं कि नन इंजुरी टू द ह्यूमन. और ह्यूमन को ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत स्पीच हार्श बोलिए कि उसे इंजुरी हो, घायल हो, उसकी आत्मा उसकी सोच घायल हो. और नाउ एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, सेंट्रल टू द जैन. इंसेक्ट्स को भी मानते हैं क्योंकि जैन जो है वो बिफोर सनसेट दे टेक्स देयर डिनर, पहले ही उनका. नाउ दे स्ट्रॉड बेयर फुटेड हो चलते हैं, कहीं उनसे कोई भी ऐसी चीज या कोई इंसेक्ट्स भी उनसे, they move the barefooted also.
Jains and principles. Next, the in fact principles of ahimsa, non-violence, emphasized within the Jain. इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है नॉन वायलेंस का, जो कि आज हमारे लिए रिलीवेंट है. टुडे दिस नॉन वायलेंस इज द रिलीवेंट इवन टुडे. हमारे जीवन में आज भी नॉन वायलेंस के उतना ही इम्पोर्टेंस है. जो और ये कहाँ से मिला हमें? जैन, जिसकी रिलीवेंसी है, जिसकी मैं बात करता हूँ, जो भारत की, जो इंडियंस की एक फिलॉसफी है नॉन वायलेंस, उसमें हम पहले बिलीव करते हैं. एंड नाउ अहिंसा emphasizes within the Jain has left its mark on the Indian thinking as a whole. पूरे भारत की सोच में नॉन वायलेंस है. मॉडर्न रिलीजन से हमें क्या है? कॉम्पैशन है, हमें दया है, हमें टॉलरेंस है. And moreover, now according to the Jain teachings, cycle of birth and rebirth is shaped through the karma. जैसे साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ये थ्रू द कर्मा है. वी आर बाउंड टू टेक द बर्थ इन दिस वर्ल्ड बाय योर कर्मा. हम कर्म करते जाते हैं और इस बंधन में हम बनते जाते हैं. अगेन बार बार हमारा बर्थ होता है इस धरती पर. बिकॉज ऑफ दैट यही कर्म है कि बर्थ, रीबर्थ एंड सेप थ्रू द कर्मा. हमारा बर्थ होता है, रीबर्थ होता है, ये हमारे कर्म के अनुसार होता है. तो नाउ वो इसीलिए फॉर दैट दे एम्फेसिस एसेटिज्म. वो किस चीज पर एम्फेसिस करते हैं? एसेटिसिज्म पर, यानी संन्यास पर, पिनांस पर, पिनांस, हार्ट पिनांस पर. एंड मोreover रिक्वायर्ड फॉर फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म. कहते हैं कि हम ऑस्टेरिटी मेंटेन करेंगे, हार्ड पिनांस करेंगे, तो वन कैन गेट द रिलीफ एंड गेट द फ्री फ्रॉम दिस रिसाइकिल ऑफ द बर्थ. इस जो बर्थ है, जो साइकिल ऑफ बर्थ है, वंस वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म, हम इस कर्म के साइकिल से रिलीव हो जाएंगे अगर हम ऑस्टेरिटी, हार्ड ऑस्टेरिटी करते हैं, हार्ड मेडिटेशंस करते हैं, और एसेटिक और फिनांस करते हैं. दिस इज द कंडीशन. एंड फ्री फ्रॉम वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा. अगर जिस दिन हम कर्मा के साइकिल से रिलीव होते हैं, इससे फ्री होते हैं, तो उसी दिन फ्रॉम दैट हम इस संसार से, फिर यह हमारी आत्मा बार बार यहाँ जन्म ले लेती है. वी आर रिलीव्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड. और यही अगर हम कोई कर्म कर देते हैं, संसारिकता में बंधते हैं, तो फिर से अगेन वी आर बाउंड टू बॉर्न. उनका मानना है. सेकेंड, दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड. और ये कैसे हो सकता है? इस संसार को त्याग. इसीलिए दे वो एसेटिक्स लाइफ पर और रिनाउंसिंग दिस वर्ल्ड, एक संन्यास जीवन को. और ये संभव है. देयरफॉर मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सर्विस. इसलिए वो मानते हैं कि मोनास्टिक जो एग्जिस्टेंस है, ये संसार से अलग एक संघ जिसको हम कहते हैं, दैट इज द नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग द एसेटिक्स लाइफ. उसके लिए संघ की जरूरत होती है, उसके लिए नियम की जरूरत होती है, उसके लिए गाइड की जरूरत होती है, सेंट्स की जो गाइड करें आपके निर्वाण या आपकी कर्म से छुटकारा पाने के रिलीफ. एंड मोर ओवर कंडीशन साल्वेशन. जैन मॉन्क्स एंड नन्स टुक 5 वॉयस. और जितने भी जैन मॉन्क्स हैं और नन्स हैं, दे
took the vows, 5 vows. Now they took the 5 vows, और जैसे abstain from the killing, killing से abstain रखना, first abstain from killing, अहिंसा जिसको, and stealing and lying, stealing नहीं करना और lying झूठ से इन्फेस्ट करना. पहला abstain from killing, second stealing and lying, third observe celibacy, restraint, restraint, and abstain from possessing property, धन संग्रह नहीं करना, not the possessing the wealth in life, possess नहीं करना. ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसको एवरी nuns and whosoever want to get the relief from the karma, so they have to do the following. Further, now Jainism was, although it was not became the so popular, because why? You see that how austerity and hard life is there. Hard life. Gradual Jainism spread many parts of the area. धीरे धीरे बहुत spread हुआ ये religion. और like the Buddhist, Jain scholars, और ये ways था एक competitions का, Jainism and Buddhism, they were in the rivalry to spread their religion in society, to hold their religion. देखेंगे मल्टी रिलीजियस सेक्ट्स थे, जैसे ब्राह्मणिज्म अपनी डोमिनेंस के लिए, बुद्धिज्म अपनी इफेक्ट्स के लिए, एंड दिस जैन्स they were now doing hard for their, working hard for their own influence in society. To okay, so for the general welfare, these all religious saints or their sanghas were in constant rivalry for spreading. And Jain, like the Jain scholars produce a wealth of literature. अगर जैन आप देखेंगे कि बहुत से लिटरेचर एंड बुक्स इनका कंट्रीब्यूशन, पाली और प्राकृत में, कुछ संस्कृत में भी है, अंडरस्टैंड. तो ये बहुत से लॉट्स ऑफ लिटरेचर दे हैव प्रोड्यूस्ड एंड गिवन एज अ हेरिटेज टू द इंडियंस. भारत को इन्होंने, इंडिया को एक हेरिटेज के रूप में ये जो जैन हैं इन्होंने राइटिंग्स और इनका एक कंट्रीब्यूशन है. एंड मोर ओवर प्राकृत के फील्ड, प्राकृत लैंग्वेज में भी इनकी राइटिंग्स है, संस्कृत में भी है, इवन तमिल में भी इनकी, तमिल लैंग्वेज में भी है, क्योंकि इसका इसे पता चलता है कि इनका एक्सट्रीम साउथ में भी इनका डोमिनेंसी था. सदर्न इंडिया में एक डोमिनेंट थे, हर स्टेट, हर, बिकॉज उस वक्त जो किंग थे, इन लोगों ने क्या किया, द किंग्स नाउ गेव द पैट्रन टू द बुद्धिज्म, जैनिज्म and even the Brahmanism. The three were now getting in the 4th centuries. Manuscripts of this text were carefully preserved, और इनमें जो manuscripts लिखे गए उसको केयरफुली प्रिजर्व किया गया. और बहुत से ऐसे लाइब्रेरीज हैं कि स्टिल हम इनके बारे में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन get from the even the libraries. So we see that how these Tirthankaras, okay, now played the important role. और बनारस भी उससे रिलेटेड है, आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री, उसमें बनारस भी जैनिज्म के जो तीर्थंकर्स हैं यहाँ से भी एसोसिएटेड. You will get
further history. Secondly, further अर्लीस्ट स्टोन मैंने कहा कि स्कल्पचर के फील्ड में जैसे श्रवण बेलगोला में स्कल्पचर्स ह्यूज स्कल्पचर्स पाए और खासकर कर्नाटक इसमें वहां पे इसका सेंटर था डेक्कन में जैनिज्म का एसोसिएट विथ रिलीजियस ट्रेडिशन से ये उसमें रिलीजियस ट्रेडिशन जो जैनिज्म का है उससे एसोसिएटेड है स्कल्पचर और वो तो वहां पे आप जानते हैं श्रवण बेलगोला और ये चंद्रगुप्त मौर्य वी नो ही वाज ए जैन तो जैन थे चंद्रगुप्त मौर्य और नाउ ही लास्ट लाइफ टाइम में कहा जाता है ऐसा ट्रेडिशंस में कि ही लेफ्ट द मगध एंड लास्ट टाइम ही वेंट देयर एंड ही नाउ ही फिनिश्ड हिमसेल्फ खुद को ही अपने आप को उन्होंने समाप्त अंडरस्टैंड तो ये और जैन थे और जैन थे आप ऐसे जानते हैं कि ट्रेडिशंस क्या था कि पूरे बुद्धिस्ट हुए बुद्धिज्म का बहुत इम्पैक्ट था लेकिन सेल्फ जो फाउंडर चंद मौर्य डायनेस्टी के माने जाते हैं वो जैन थे अशोका अशोका भी पहले बुद्धिस्ट नहीं था लेकिन आप जानते हैं कि बैटल ऑफ कलिंग में बैटल हुआ उस बैटल में मैशेकर इतना हुआ देखकर इस हार्ट मूव्ड उसका हृदय चेंज हो गया एंड अशोका नाउ टर्न टू बुद्धिस्ट हम पूरी तरह से बुद्धिस्ट भी नहीं कर सकते बुद्धिस्ट में और पीस और एक उन्होंने लिया लेकिन जो रीजन भी नहीं एक कोड ऑफ कंडक्ट जो तैयार किया वो बुद्धिज्म नहीं था हालांकि कहा जाता है कि उन्होंने बुद्धिज्म में उसने अपना अशोक ने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट किया था लेकिन एक्चुअली जो उन्होंने थंब जो निकाला था दैट वाज नॉट बुद्धिज्म बुद्धिज्म नहीं था दैट वाज द कोड ऑफ कंडक्ट एंड मैसेज एंड इंस्ट्रक्शन टू द सिटीजन्स good virtues were now written and carved out on the inscription and spread in the empire for the guidelines to the citizens how they have to do the conduct or how they have to do this was the further students next देखा जाए जैन traditions produced by devotees जैन तीर्थंकरास have been recovered from several sites throughout the continent अगर हम पूरे भारत में देखें तो बहुत से ट्रेडिशंस तीर्थंकर्स के बारे में जैन तीर्थंकर के बारे में लॉट्स ऑफ वी हैव द मैटर्स उनके बारे में इनका कल्चर हमारे भारत का कल्चर्स को इनरिच करने में इनका लिटरेचर इनसे रिलेटेड आर्किटेक्चरल्स इनसे रिलेटेड और इनसे रिलेटेड लिटरेचर आर्किटेक्चर्स टीचिंग्स ऑफ the Jains Tirthankars we have a lots of information and now this religion एक चीज है जैनिज्म ने जो दिया हमें पूरी दुनिया को वो था नॉन वायलेंस दैट इज द नॉन वायलेंस विच द जैनिज्म gave और आज भी वो नॉन वायलेंस हमारे आज के भी पूरी दुनिया के लिए नॉट ओनली फॉर भारत एंड इंडिया दैट इज द रिलीवेंट and that should be the regarded and the respect okay that is the for today students next हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे